हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 जो है ज्योग्राफी का है, यानी भूगोल का है, जिसमें आज हम करेंगे बायोम्स यानी जीवोम्स। जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसमें हम इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्लांट एनिमल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके चैप्टर में जो है बायोम्स है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, the evergreen rainforest biomes. There is the most important here, the evergreen rainforest biomes. That is important. The first point here, according to the evergreen rainforest biomes, the geographically background. The geographically is background is the most important point here. This biome extend up to the 10 degrees is altitude on the both side of the equator. The cover their area of the Amazon lowland of South America is a kangaroo is a basin of the equilaterals Africa and Southeastern Asia islands. Extending from the Sumatra and the New is the Junius, there is the area is shown in the figure. There is important here. This area experience a high temperature through their area with a range as the little as a 2 Celsius here. However, their daily range of temperature is a much higher than to the annual range of temperature here. This areas get a heavy rainfall running between to the 150 centimeter to 250 is a centimeter. It is a distributed through the year. The important here point, there the area get a heavier rainfall ranging between 150 centimeter to 250 centimeter here. The rainfall is occurred in the afternoon almost on the daily basis, and this also is happens because of the huge amount of the water vapor is reaching in their atmosphere due to high temperature. Hence, this area is considered to be on equable climate as both temperature and rainfall are high for the whole of the year. There is an important point here, and the next year show the figure on this area. Here show the map on the most important है Kangaroo, Sahara, Thar, Arabians, Kaharis and the Atama. There is the most important show in this diagram, and there is a map is important area here. The second here natural vegetation and animal life. There is important here natural vegetation and animal life here. The combination of the heat and the moisture make these biomes as a perfect environment for a great variety of plants and animal species. You know that there is important, the combination of heat and the moisture make this biome as a perfect environment for a great variety of the plant and animal species. The variety of plant species can be understood from the fact that 1 square kilometer many contain as many as about 1,000 of different types of plant species. Most of the trees have a butter stress as trunks and shallows is the root and the large dark evergreens leaves. The evergreen is a rainforest is arranged in their 3 leaves. The canopies are upper levels. There is a trees lies between about 20 meter to 50 meters.
Most of them are the hard-wooden trees like ebonies, mahagonis, rosewood, and sandalwoods, and cherry, etc. That is important here. And the next year, the second leaves of the intermediate leaves, there are tree lies between about 10 meters to be 20 meters. The most important plant of this group is a plum trees. You know that there is important here. The most important plant of this group is a plum trees. Apart from the plum trees, is the epiphytic and parasitic plants are also found in this layer. The third or lower level lies from a surface leaf to about a 10 meter of heights. Under this category, a variety of plants are found, namely the orchids, ferns, mosses, and herbs, and bananas, and pineapple, etc. Because of the tall and broad leaved and the dense plant, sunlight could not be reached at the lowest leaf surface. Because of poor photosynthesis process at this level, number of plant species are very low. Like a vegetation, evergreen rainforest is inhabited by the numerous birds, mammals, insects, etc. There is important here. Is a like a vegetation, evergreen rainforest is inhabited by the numerous birds, mammals, insects, etc. And some important animal of these biomes are jaguar and lemur and the earthworm and elephant, etc. Macaw, parrots, sloth, and the ducks are some of the important birds of this area. The most of birds are colorful. The water bodies of the equatorial area are also rich in the animal life with alligators, tarantula, and fishes and frog, hippopotamus, etc. And because of there is the impermeability and the high vegetation growth in the lower part, the most of the insect, birds, and animal resides on the branches of the tree. The water bodies of equatorial area are also rich in animal life with the alligator, trackless, fishes, frog, and hippopotamus, etc. Because of the impenetrability and the high vegetation growth in the lower part, most of the insect, birds, and animals resides on the branches of the tree. Generally, they do not come down to the ground. The productivity of the tropical rainforest biomes is the highest of all the biomes types of the world. It may be pointed out that the rainforest biome represents only 30% of the total geographical area of the world. But this biome accounts for the 40% of the total is the productivity of the world. The next point here, human response. The human response here is important here. Human beings has also started to be damage this biologically rich ecosystem through the various developmental activity. And these activities are construction of the large dam and reservoirs and the roads and the highways, extraction of the timbers, cleanliness for a posture of crops, encouragement and the cleanliness by the landless, peasant, etc. There is an important here human response. Ecologists is argues that if the cleanliness of continue at the recent rates, all of the world as a undistributed rainforest is likely to have a disappeared or to be damaged by the 200 2020, and this would be lead to be a irreparable loss of biological assets. Rainforests contain about 40% of the all now species of plants and animal. There is an important point here. The rainforest contain about 40% of all known as their species plant and animal. A clearness of rainforest causing the loss of the valuable natural resource including hardwood and trees and tree products such as quinines, rubbers, vegetables, and gums, etc. There is an important point here. And this loss is just not ecologically but also has a very significant environmental consequence. And the evergreen forest provide to the various environmental service by the helping to be regulate global weather patterns
and the soil erosions, river floodings in the tropical etc. Evidence show that a tropical deforestation has led to be greenhouse effect and global warming by the removing an important carbon sink air. That is an important point. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है सदाहरित वर्षा वन जीवोम, काफ़ी महत्वपूर्ण है सदाहरित वर्षा वन जीवोम। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट यही आता है भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं ये जीवोम जो है विषुववृत्त वृत्त के दोनों ओर दक्ष अक्षांश तक विस्तृत है, यानी 10 जो है अक्षांशों पर इसकी जो है मानी जा सकती है अपनी स्थान। और इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका की जो है अमेजोन बेसिन की जो है निम्न भूमि, विषुववर्तीय अफ्रीका का कांगारू बेसिन और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों यानी सुमात्रा के जो न्यू गिनी तक के क्षेत्र सम्मिलित है। और यह जो है चित्र में भी दर्शाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे मैप जिसमें ये बात को जो है क्लैरिटी से समझेंगे। इस क्षेत्र में जो है वर्ष भर तापमान ऊंचा ही रहता है, यानी देखा जाए तो हाई टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेनेंस होती है तथा वार्षिक ताप जो है परिसर 2 सेल्सियस तक होता ही है। यहाँ दैनिक ताप जो है परिसर वार्षिक ताप परिसर की अपेक्षा अधिक होती है। और इस क्षेत्र में भारी वर्षा भी होती है जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में मापा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्षा वर्ष भर होती ही रहती है और वर्षा प्रायः प्रतिदिन दोपहर के बाद ही होती है, यानी वर्षा पूरे साल होती है और वर्षा होने का समय जो है प्रतिदिन दोपहर के बाद ही होती है। अधिक तापमान के कारण अधिक मात्रा में जलवाष्प जो है वायुमंडल में पहुंच जाता है और इसलिए यहाँ अधिक वर्षा होती है, यानी अधिक तापमान पड़ता है तो यहाँ जलवाष्प बनता है और जलवाष्प के कारण जो है अधिक वर्षा होती है। और यह क्षेत्र सम जलवायु वाला जो है क्षेत्र समझा जाता है क्योंकि तापमान और वर्षा दोनों ही पूरे वर्ष अधिक होते ही रहते हैं। यहाँ पर जो डॉट डॉट निशान आपको दिख रहा होगा ये क्षेत्र वही क्षेत्र है जहाँ पर अधिक जो ये पाए जाते हैं जीवोम्स, जाके जैसा हरित जो है जीवोम पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैप के अंतर्गत दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हो कि विश्व ग्लोब पे जो है इसकी स्थिति किस प्रकार है। भारत में देखा जाए तो ये क्षेत्र नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी आपको अमेरिका में भी दिख रहा होगा और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। उसके पश्चात आता है प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जीवन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं प्राणी जीवन गर्मी और आर्द्रता के संयोजन से इस जीवोम को अनेक प्रकार के पौधे और पशु प्रजातियों के लिए एक आदर्श पर्यावरण प्रदान किया है। पौधों की प्रजातियों की विभिन्नता इस तथ्य से पता चलता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पौधों की लगभग 1000 प्रजातियां मिलती है। अधिकतर वृक्षों के तने चिकने, उथली जड़ एवं चौड़ी सदाबहार पत्तियां होती है। सदाहरित जो है वर्षा वनों के 3 स्तरों में बांटा जाता है। पहला जो है छतरी तथा जो है उत्तरी स्तर, जहाँ पर वृक्ष लगभग 20 से 50 मीटर तक ही ऊंचे होते हैं। इसमें अधिकतर जो है वृक्ष कठोर लकड़ी वाले होते हैं जैसे एवोनी, मेहगोनी, रेडवुड्स और सदवुड्स और सिकोना आदि। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है जो ये पेड़ पौधे यहाँ पर इन क्षेत्रों में कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। मध्यवर्ती भाग का जो है द्वितीय स्तर, जहाँ पर वृक्ष लगभग 10 मीटर से जो है 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस समूह का सबसे महत्वपूर्ण जो है वृक्ष ताड़ का वृक्ष है। ताड़ का वृक्ष आप जानते होंगे जिससे जो है ताड़ी बनाई जाती है, यानी एक तरह का एल्कोहल ही होती है जो कि गाँव के साइड यूज़ होता है। बिहार के साइड ताड़ के जो पेड़ हैं काफ़ी देखने को मिल जाता है। ताड़ के वृक्ष के अतिरिक्त इस जो है परत में आदि पादप और परजीवी पौधे भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर तीसरी अथवा निम्न स्तर पर वृक्षों की ऊंचाई धरातल के लगभग 10 मीटर तक होती है और इस वर्ग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जैसे आर्किड्स, पनन, जड़ी बूटी, केले और अनानास आदि के पौधे। ऊंचे तथा चौड़ी पत्तियों वाले घने वृक्षों की कारण सूर्य की रोशनी जो है निम्न स्तर अथवा धरातल तक नहीं पहुंच पाती है और इस स्तर पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे की प्रजातियों की संख्या बहुत ही कम है। यानी देखा जाए तो इस स्तर पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे की प्रजातियों की संख्या बहुत कम यहाँ पर देखी जाती है।
इस जीवोम के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्राणी अगर देखें हम तो जगुआर, लेमूर्स और गाट, औटान, हाथी आदि पाए जाते हैं। मकाऊ, तोता, सखालंबी और टूकन इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण पक्षी है। अधिकतर पक्षी जो है चटकीले रंग के होते हैं, यानी काफ़ी चमकदार होते हैं, काफ़ी रंगीन होते हैं। विषुववर्तीय क्षेत्रों के जलीय भाग जो है प्राणी जीवों में धनी होती है। यहाँ पर कछुए, घड़ियाल, मछलियाँ, मेढक, दरियाई घोड़ा आदि पाई जाती हैं। निचले भाग में धनी वनस्पति और जो है अप्रवेश्य होने के कारण जो है अधिकतर कीट पतंगे और जो है प्राणी वृक्षों की शाखाओं पर रहते हैं। सामान्यतः यह धरातल पर नीचे नहीं आते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अधिकता जो है विश्व के सभी प्रकार के जीवों से अधिक है और वर्षा वन जीवों विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 13% भाग पर ही पाए जाते हैं, परंतु ये जीवों विश्व की कुल उत्पादकता के 40% के लिए ये जिम्मेदार है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके बाद इसका अंतिम पॉइंट यही दर्शाता है कि मानवीय अनुक्रिया किस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी दिलचस्प रहेगी कि मानवीय अनुक्रिया कैसी है। कहते हैं मानव ने विभिन्न विकासात्मक जो है अनुक्रियाओं द्वारा जैविक रूप से धनी इस पारितंत्र भी क्षति पहुंचानी आरंभ कर दी है। तो जिसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं मनुष्य वो लालच का पिटारा है जहां इनकी लालच बढ़ती नहीं है और जैविक रूप से धनी इस पारितंत्र को जो है क्षति पहुंचाना आरंभ हो गया और काफ़ी विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। इस अनुक्रिया में जो है विशाल बांधे, जलाशय, सड़कें और राजमार्गों का जो बनना, इमारती लकड़ियों के लिए जंगलों का काटा जाना और घास मैदान और फसलों के लिए वनों को साफ करना, भूमिहीन किसानों द्वारा वनों की सफाई करके ज़बरदस्ती भूमि पर कब्जा करना आदि सम्मिलित है। तो ये मानव अनुक्रिया है जिसकी वजह से जो है ये प्राकृतिक क्षेत्र जो है विनाश होने के कगार पर आ चुका है। देखा जाए तो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर वनों का सफाया इसी दर से होता रहा तो विश्व के वर्षा वनों के सन 2020 तक गायब हो जाएंगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज हम 2023 तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जानोगे तो यहाँ पर सभी वन जो है नष्ट हो चुके हैं। सारे प्राकृतिक जो वन थे वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं। तो वैज्ञानिक ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गया और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देखिएगा तो हर क्षेत्र में वन जो है गायब सी होती चली जा रही है। कहते हैं नष्ट हो जाने की संभावना तो पूरी बनी हुई है और बन गई, क्या बन भी चुकी है। इसे जैविक संपत्ति के जो है जो अपूरणीय क्षति होगी और वर्षा वनों में पौधे और पशुओं के जो है संपूर्ण जात प्रजाति का 40% भाग रहेगा। वर्षा वनों के सफाये से जो है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन जैसे कठोर लकड़ी के वृक्ष उत्पाद जैसे कुनीन, रबर, वनस्पति गोंद आदि नहीं मिल सकेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ऐसे बहुत से पौधे जो है विलुप्त हो चुके हैं जो पहले हुआ करते थे। तो कहते पारिस्थितिक वैज्ञानिक ने इस बात को सही जो है आकलन किया था अपने समय में। यह क्षति केवल पारिस्थितिकी ही नहीं है बल्कि इससे बड़े ही पर्यावरणीय दुष्परिणाम होंगे और देखने को मिला भी है कि इसका जो है बहुत ही दुष्परिणाम यहाँ पर हुआ है। कहते हैं सदाहरित वन जो है भूमंडलीय मौसम प्रतिरूपों के नियंत्रण करके विविध पर्यावरण सेवाएं प्रदान करते हैं और ये जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मृदा अपरदन तथा नदियों में आई बाढ़ को रोकने में भी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आज के समय में देखिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आज बाढ़ आती है लेकिन ये पौधे नहीं अपना जो है कर्तव्य निभा पा रहे हैं। कारण क्या है? इनको जो है विनाश किए जा रहे हैं मनुष्य ने। कहते हैं प्रमाण सिद्ध करते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो है वन नाशन ने एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक को हटाकर हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन को पैदा किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। हर वर्ष जो है इसमें काफ़ी टेम्परेचर जो है इंक्रीज होते हुए हमें देख सकते हैं। तो इससे जो है पर्यावरण के कारण ही हुआ है और पर्यावरण को नष्ट करने का सबसे बड़ा जो जाता है कारण वो इंसानों को जाता है, जो इंसान लालच के आड़ में अपना जो है खुद पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अभी भी नहीं समझे तो आने वाला समय में ऐसा रहेगा कि इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप पेड़ पौधे का अस्तित्व खत्म करोगे तो आपका अस्तित्व भी नहीं बच सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगला हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है आपको एक बात मैं बता दूं कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिससे उनको भी जो है इस
वीडियो का जो है समझ प्राप्त हो सके। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर में 8th क्लास से लेकर जो है आपको MA तक हर एक वीडियो मिलेगा, जिसको आप जो है भली भांति समझ सकते हो। और इसको जानने के लिए, देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करके चैनल को रखना पड़ेगा और वीडियो के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करके जो है वहाँ पर वीडियो ढूंढना पड़ेगा, जो आपके काम के होंगे उनको सेव भी करना होगा।